Welcome to Growth Masters interview show, and today's our guest is Pragya. So she has been before also like two, three times. So today's our discussion will be, I think it has become a pandemic right now, I feel, because many people are confused what to do, or they are in a state of a big confusion what to do, how to come out of that. So today we are discussing about the heartbreaks that happen and how to heal from that. So Pragya is a art of living teacher and also a author. She has written two books. So let's welcome her. Thank you. Thank you so much, Susan. Namaste, everyone. I'm so grateful to be here. Yes. So how to come out of, like, many people are in like office and in street they are walking and maybe in park somewhere they saw someone, and that physical attraction is more. So how do you think, like, using the knowledge or our Bhagavad Gita, or how to have their self control, you Hmm. think you can guide them? So you are sharing about the physical attraction the people feel, Yes. the lustful desires. Often people ask, how to come out of the lust and everything. The most important thing here is if you're busy in your life, you're doing creative stuff, these thoughts never haunt you. hmm, है ना? बट अगर आप बहुत ज्यादा खाली हैं, बहुत समय है आपके पास, आप अपने गोल्स की तरफ काम नहीं करते, तो आप अलग अलग लोगों को देख करके अट्रैक्ट और डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। तो पहली चीज आपको ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए कि आर यू बिजी इन योर लाइफ डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव। वही एनर्जी है, या तो वो क्रिएटिविटी बन सकती है या तो वो लस्ट में कन्वर्ट हो सकती है। हम्म तो और ऑफ कोर्स इसमें आपने पूछा ना, तो इसमें प्राणायाम बहुत हेल्प करता है। अगर आप ऐसे सोचते हैं, अरे मुझे ऐसे थॉट्स क्यों आते हैं, व्हाई एम हैविंग दीस थॉट्स, इट्स ओके, डोंट जज योरसेल्फ, आर यू डूइंग समथिंग अबाउट इट। पहले तो अच्छे से अपने काम में लग जाइए, अच्छा काम करिए, कंट्रीब्यूशन वाले काम करिए, और प्राणायाम करिए, प्रैक्टिस प्राणायाम। व्हेन यू चेंज द रिदम ऑफ योर ब्रेथ, द इमोशंस चेंज। Now you have self control in your life. Now you don't feel attracted or distracted by anything. So work on your breath and do your work sincerely. यही कारण है ना, कभी कोई प्रैक्टिस किया नहीं, अपने कर्म को अच्छे से कर हम नहीं रहे हैं, कैसे निकले कैसे निकले, अरे काम करो, निकल चुके हो फिर। निकल जाओगे, है ना? कोई ऐसा नहीं है दलदल में फंस गए हैं, तो यही सब है, इससे आप निकल सकते हो, है ना? सो ऑफ कोर्स टेक अ हेल्प ऑफ अ टीचर, ऑफ कोर्स, यू नो सबका आंसर तो आपको पता ही है, सुदर्शन क्रिया हैज टू बी डन नो मैटर व्हाट। और अगर आपने अभी नहीं सीखा है तो आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। द वर्ल्ड इज लर्निंग, द वर्ल्ड इज हीलिंग, द वर्ल्ड इज ग्रोइंग, एंड आई डोंट नो व्हाट आर यू डूइंग। सो डू योरसेल्फ अ फेवर। या। So as you told, healing. So next question is about that, how to heal from heartbreak. So you told pranayam, and I think you also can add on about how meditation can also play important role. हंड्रेड So how to परसेंट heal from heartbreak, because that keeps on hunting and our mind is not structured to be in present, like it goes to past, what will या। happen in future, and हम्म। other things in life and many more things. So how to heal from like past heartbreaks? True. So when you are attached with someone now, that person becomes your whole world. Every small things matters to you. क्या कर रहे हैं? Late reply क्यों किया मुझे? She or he is ignoring me. Oh, my world is over. है ना? तो इट्स नॉट दैट दे आर टू स्पेशल, अपने मन में आपने बहुत स्पेशल बना लिया, और फिर एक दिन वो छोड़कर चले गए और आपको क्या लग रहा है, हार्ट ब्रेक हो गया जी, अब दुनिया नहीं अच्छी लग रही मुझे, अब क्या है, एंड यू आर ऑब्सेसिंग ओवर दैट थॉट, यू फील वर्थलेस। शुरुआत कहाँ से हुआ? अटैचमेंट से ही हुआ। हम्म? तो पहली चीज अब देखनी है ना, अब जीवन में, you keep yourself as a priority, your swadharma as your priority, and you attach to something which never changes. कितना डेंजरस है ना,
ऐसे लोगों पर, ऐसी चीजों से, ऐसी परिस्थितियों से हम मन को अटैच करते हैं जो कि बदल जाती है, चेंजेस विद टाइम। और जब वो बदलती है उसी वक्त क्या बोलते हो? हालत खराब हो गई, यू फील ओ आई एम हार्ट ब्रोकन, आई एम इमोशनल, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस, यू नो। आई एम टेलिंग यू, attached to something which never changes. And what is that? Any idea, शशांक? क्या है वो? Hmm? Uh, we can tell something that is not changing is who has created us or our soul. डिवाइन, ईश्वर, गुरु, जो भी आपके जीवन में है ना, उनसे आप जुड़ो। दैट इज द सेंटर ऑफ योर वर्ल्ड, है ना। बिकॉज आपको नहीं दिख रहा है क्या? सब टेम्पररी है, सब बदल, अच्छे बुरे की बात ही नहीं हो रही है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। हम भी तो बदल जाते हैं ना। यू रिमेम्बर समटाइम्स यू प्रॉमिस समवन समथिंग, ओ आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर यू फॉर एवर, बट यू आर नॉट। नहीं है ना। यू स्टार्टेड इग्नोरिंग देम और समथिंग, बट आपने बोला था कभी तो उनको गले लगा करके कि आई विल बी विथ यू। और यू टोल्ड आई लव यू टू समवन बट यू डोंट लव देम एनी मोर। तो जिस तरीके से योर माइंड इज चेंजिंग, सिमिलरली देयर माइंड इज ऑल्सो चेंजिंग। सो डोंट कैरी हेटरेड और गिल्ट, और डोंट थिंक यू आर वर्थलेस, यू आर नॉट, देयर माइंड चेंज्ड। You contain the divine power, so attached to the highest. Put your focus over yourself. Hmm? You are your, Valentine, if you want to say. Divine is your Valentine. So, आ as जाओगे। you, और वन मोर थिंग, डोंट रश। ऐसा नहीं है कि आपने ये ज्ञान सुन लिया, यू हर्ड दिस विजडम एंड दिस पॉडकास्ट एंड यू विल बी हील्ड। नो, इट वोंट हैपन। यू हैव टू टेक एन एफर्ट, यू हैव टू गो थ्रू दैट पेन। आंसू आ रहे, आने दे। It's okay. Don't take some extreme steps. Just feel the pain, feel the sensations, and actively do something about it. हम्म? अपने रूटीन को आप अच्छा करिए। अपने नहीं मन कर रहा है फिर भी काम करना है, नहीं मन कर रहा है फिर भी सत्संग में बैठना है। नहीं मन कर रहा है फिर भी साधना करनी है, मेडिटेशन करना है। डोंट फोर्स। और आप देखोगे एक दिन करते 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 वन डे यू वेक अप, डोंट फील एनीथिंग एनी मोर, यू आर आउट ऑफ इट। हम्म कैसे आए सब छोड़ के बैठे हैं, कुछ नहीं होगा। when you make an effort, for example, if you're standing on the road, you have to go to the airport, you will take a taxi, then you will go, right? or you're standing there, अरे जाना है जाना है, अरे भाई टेक एक्शन, बैठो। कितना आसान है जिसको, जो एक्शन लेता है। और जो बस बैठ के बोलता है मुझे निकलना है कैसे निकलो, वो कभी नहीं पहुंचेगा, चाहे वो 1000 बार भी ये बोले। चाहे वो 10 घंटे भी खड़ा रहे। सो सीक हेल्प, टेक एक्शन, नो। और ये मेडिसिन खाने के चक्कर में मत रहिए। दैट इज नॉट द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। शॉर्ट टर्म कुछ रिलीफ मिल जाएगा बट लॉन्ग टर्म नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म, क्योंकि देखो आप एक से निकलोगे फिर कुछ और अट्रैक्शन आ जाएगा, वहां पर आप फंस जाओगे, है ना। सो फाइंड दैट स्ट्रेंथ विद इन योर सेल्फ। मन की बात है ना ये, भावनाओं की बात है। तो अपने भीतर उसको फाइंड आउट करेंगे, और प्रोफेशनली योगा टीचर के साथ, इन सब चीजों के साथ काम करें, एंड ब्रिंग द हीलिंग, है ना। so as you told about attraction, like how to overcome attraction, like it's not like they are loving someone or maybe their senses are liking that, like they see someone because there is right now we have a digital media. Anyone you can see, like many people you can see in Instagram, Facebook, or when you are going somewhere outside. So, but they don't like that. Actually, that is not their nature, but their senses are like not leaving them. Means you Hmm. can tell similar to self control. It's going Hmm. out of them, out of their Hmm. control. How Hmm. you like can tell in simple way how they can do something. Maybe in that Hmm. moment they can change that emotion. Hmm. Okay. I will give you an example. Remember, if you have a job interview, you go outside, you use the metro, wherever you find many, whatever beautiful people or whatever stuff. एक नजर भी जाती है क्या? नहीं, यू आर सो इनग्रॉस्ड इन योर वर्क, अरे क्या होना है, यू आर सो फोकस्ड। Find that focus in everyday life and see how the attraction disappears, how you become attractive. Hmm? Who is attractive, Shashank? The one who is focused in their own selves, the one who is working tirelessly towards the bigger goal. They becomes attractive.
But the one who is attracted, the one who is feverish, the one who's been chasing energy, people start running away from those people, isn't it? Do you want to become attractive? Be focused. I'm telling you. आप इतने इमर्स हो ना अपने काम में कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता है कौन क्या है, और फिर ये क्वेश्चन अट्रैक्शन आ रहा है नहीं होता। So as you तो told, थोड़ा सा जो है ना फोकस की कमी, the lack of focus brings all outward. You're so inwardly engrossed in your work. Yeah. as Hmm. you told, like focused on work, like I remember, like KPJ Abdul Kalam, it can be anyone, Yeah. like how they were like scientists were not even going to their home, like how focused they were. They don't want Hmm. to like waste their every second. Like I am not telling you become same way, at least do something like 30 minutes, 45 minutes, the same. Then take a small break. It's okay. Like because in And starting there's you one, need yeah, small steps. and there's one more perspective in Krishna, like किससे आप अट्रैक्ट होते हो? जो सुंदर है, जो अच्छा है, जो ब्रिलियंट है, उससे अट्रैक्ट होते हैं ना आप। जो सुंदर ही नहीं, उससे तो नहीं होते। तो why do you feel attracted? Because you find it beautiful, brilliant, attractive, nice. The Lord Shri Krishna in Gita shares very beautifully, anything that is beautiful, that is brilliant, that is nice, that is, catching your mind. That's me. Wahi hai. It's Krishna who is behind that beauty. कृष्ण से ज्यादा अट्रैक्टिव कुछ नहीं है। उस सुंदरता के पीछे, उस ब्रिलियंस के पीछे कौन है? भगवान ही तो है, कृष्ण ही। उनकी एनर्जी शाइन कर रही है ना। तो नेक्स्ट टाइम, you're doing your work, and when you look around, you find something which is attracting your attention. Someone who is so brilliantly sharing stuff, so dynamic, someone who is so beautiful, charming. What will happen? You will not attach to that individual. You will see the divinity in them, and what will happen? Again, you will turn inward. जैसे भगवान गीता में कहते हैं ना कि I'm seated in the heart of all beings. हर जीवों के हृदय में वो स्थिर हैं। यहाँ पर बैठे हैं भगवान। तो वो जो ब्यूटी वहां पर, यही का रिफ्लेक्शन है, वहां नहीं है। कहाँ जाओगे, क्या पकड़ोगे? इट इज हियर, यहाँ पर तो है वो। सो नेक्स्ट टाइम इट डजंट मीन कि यू विल नॉट लाइक द ब्यूटी, यू विल नॉट अप्रिशिएट द ब्यूटी, बट यू विल नो द सोर्स। जब आपको सोर्स मिल सकता है, सोर्स आपके भीतर है, तो आपको फ्रेगमेंट्स क्यों चाहिए? हम्म तो इवन द ब्यूटी विल रिमाइंड यू ऑफ कृष्णा। कहाँ अभी इधर न जाए जी, उधर न जाए, ये न सोचे, ऐसा नहीं है। यू कैन गो वेयर एवर यू वांट, एंड येट यू कैन बी अनटच्ड, फुल ऑफ डिवाइन एनर्जी। Isn't it so lovely? Of course, it will take time, but practice. Practice. Don't judge yourself. Just practice. Yeah. So next question is many people are busy, so they don't have Mm. that much time to do anything. So for them, any simple way to come out of heartbreak. They don't want to put effort or busy thing like they tell, but if they are asking this question, they are not really busy. So what do हाँ, you tell them in starting what they can start simple and then go to like maybe advanced or medium? yeah. First of all, if you find something important now of value, you find time for it. अगर कुछ important लग रहा है तो समय आप निकालते हो. So stop telling yourself you're busy. Busy being what? Busy being crying? Busy being suffering? Hmm? है ना? तो मेक टाइम, गिव इट अ प्रायोरिटी। जीवन में ना प्रायोरिटी देना सीखिए, तभी आप निकल पाएंगे। एंड आई हैव नो शॉर्टकट हियर टू गिव, क्योंकि अगर शॉर्टकट हो तो कोई और भी ले लेता ना। बाकी लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतनी साधना क्यों कर रहे हैं, इतना एफर्ट क्यों ले रहे हैं हर चीज में? दे आर इन्वेस्टिंग देयर टाइम, एनर्जी, मनी, देयर लाइफ इन ऑल दोज थिंग्स, एंड दे आर यू नो ब्रिंगिंग प्रोग्रेस। तो पहली चीज है, स्टॉप लाइंग टू योर सेल्फ, यू हैव टाइम। अभी आईपीएल आ रहा है, सारी चीजें हो रही है, यू फाइंडिंग टाइम फॉर दैट, गोइंग, यू नो तो पहले क्या करिए, मेक इट अ प्रायोरिटी, तभी आप बाहर निकलेंगे। वरना फिर से हार्ट ब्रेक हो जाए, फिर कोई दिखा, फिर छोड़ के चले गए, उसी लूप, मेरे पैटर्न में कितने जन्मों से आप फंसे हुए हो भाई। जन्मों की चीज शॉर्टकट से ठीक होगी नहीं, यू हैव टू पुट इन एन एफर्ट। अब इसमें क्या करना है ना, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज
जैसे मैंने बताया था, वर्क ऑन योर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग पर काम करना स्टार्ट करें, किसी क्वालिफाइड टीचर के साथ, किसी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। सो आई रिकमेंड सुदर्शन क्रिया। ध्यान करें। हैप्पीनेस प्रोग्राम में क्या करते हैं? वी हील हार्ट्स, दिस इज व्हाट माय गुरु सेज। टूटे हुए दिलों को जोड़ देते हैं भाई। तो आपको क्या लगता है, कोई यहाँ पर हम संन्यास सिखाते हैं आपको? क्या सिखाते हैं? बाबा बनो, ऐसा नहीं सिखाते हम। और ना हम आपको कुछ और बोलते हैं। अगर आपका दिल टूटा है तो भी आप आ सकते हो, जुड़ जाएगा। आपको एक्सेलेंस पर जाना है, आपका जीवन में सब कुछ अच्छा है, बेस्ट है, आपके बड़े गोल्स है, आ जाओ। देर इज नो लिमिट टू द हाइएस्ट, राइट? तो enroll yourself in happiness program, find time, don't say ऑफिस है। अरे ऑफिस बहुत सारे लोगों का होता है ना? इट इज इन 200 कंट्रीज, सब कोई सीख रहा है। और जो जितना ज्यादा बिजी है ना, उतना ज्यादा वो ध्यान कर रहा है, वो उतना ज्यादा ज्ञान के लिए समय निकाल रहा है। हम्म जैसे आपको पता ही है स्टीव जॉब्स के बारे में, वो कई कई महीने आकर के इंडिया में उन्होंने बिताया। उनसे ज्यादा बिजी कौन है? बट जो जितना ज्यादा बिजी, उतना ज्यादा वो स्पिरिचुअलिटी को समय देता है, क्योंकि उसको उतना बड़ा कुछ क्रिएट करना है ना? तो स्टॉप लाइंग टू योर सेल्फ, डू द हैप्पीनेस प्रोग्राम, गो फॉर एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम्स एंड सी हाउ द मैजिकली योर लाइफ विल चेंज। यहाँ पर मैं नहीं बता सकती, क्योंकि ये अनुभव करने की चीज है। योर लाइफ विल चेंज फॉर श्योर। शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिए, शॉर्टकट से कुछ नहीं हुआ है। It is इट्स अ like लॉन्ग टर्म a प्रोसेस। hotel or a movie you can go and only experience. It या, can't be told in words. यस यस, सिंपली। So next question is how to find joy in self. So not fall into any heartbreaks or any attraction. How to find joy in self. Like many times what happens, we need some friend or someone, हम्म। aloneness or something, they don't want to be alone. Like if या। they are going to trip also, like they want someone, it's okay, it is safe. I will also tell it's okay if you go with someone, it is safe, like they will be also guiding you, or it will be also safe, like so you don't get lost or something. But how to find joy in self, like with themselves, how they can do. ब्यूटिफुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय गुरु सेज ना कि अगर आप खुद अपने आप में बोर फील करते हो, इमेजिन हाउ बोर्ड पीपल फील इन योर कंपनी। सो इफ यू कैन बी हैप्पी विथ योर सेल्फ, यू कैन मेक अदर्स हैप्पी इन योर कंपनी। एंड देन यू से, oh, I feel lonely, people run away from me. How boring you are. Can you be complete in yourself, joyful with yourself? कैसे हो सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ। कैसे कनेक्ट करते हैं? ध्यान के थ्रू। कहते हैं ना, जब गुरु जीवन में आते हैं तो खुद से कनेक्शन बन ही जाता है। पहले हम डिसकनेक्टेड घूमते थे। सी विल कम इन माई लाइफ, ही विल कम इन माई लाइफ, देन आई फील जॉयफुल, समवन अप्रिशिएट मी, आई फील जॉयफुल, आई फील हैप्पी। हम्म कहते हैं ना, भगवान कहाँ बैठे हैं? हमारे हृदय में बैठे हैं, हमारे भीतर बैठे हैं। उनसे कनेक्ट किया क्या? नहीं। ध्यान इज दैट प्रैक्टिस वेर यू कनेक्ट विद द डिविनिटी विद इन यू। इसलिए इतना आपको लग रहा होगा ना, सब कोई मेडिटेशन करो। क्यों करे भाई मेडिटेशन? इतना क्यों करना है? अरे खुद से कनेक्ट नहीं होना है क्या? फोन में, फोन इंपॉर्टेंट है ना? क्यों? अरे फोन के बिना चलेगा क्या? बोलते हो नहीं चलेगा, क्यों? दूसरों से कनेक्ट होने के लिए फोन इंपॉर्टेंट है, और खुद से कनेक्ट होने के लिए ध्यान इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है अब ध्यान? बताइए। फोन से भी ज्यादा ना। फोन के बिना तो किसी का नहीं चल रहा है, तो ध्यान के बिना भी और किसी का नहीं चलेगा। हम्म सो ध्यान करे, मेडिटेशन करे, एंड यू विल फाइंड सच जॉय विद इन यू विच नो बडी कैन टेक अवे फ्रॉम यू। पहले क्या होगा, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कम समय में तो नहीं कर पाएंगे, बट थोड़ा सा मैं बताती हूँ आपको। यू कनेक्ट विथ योर सेल्फ, यू आर अवेयर अबाउट, यू नो, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। क्लैरिटी ऑफ माइंड डॉन्स विद इन यू। कनेक्टेड ही नहीं है, द वर्ल्ड इज कंट्रोलिंग यू, द वर्ल्ड इज टेलिंग यू व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। यू आर फीलिंग सप्रेस्ड, यू आर फीलिंग श्रिंक्ड, एंड देन यू से डिप्रेशन में चले गए जी। कनेक्शन विथ योर सेल्फ, then you realize your swadharma, your duty here in this world. You find your skills, your potentials, hidden potentials uncovers. अब आप वो करना स्टार्ट करते हैं, फिर कहाँ समय बचता है आपके पास? फिर जो अलग जीवन शुरू होता है ना, वो बात ही अलग है। सो
Find that joy through meditation. Yeah. So as you told, clarity of mind, like previously I did a podcast, so she was also telling about that. Uh, she was telling she used to meditate to get more clarity. So you can Mm. think like how much the confusion or distractions are there in in our present world. Means Yeah. to get more clarity, she used to meditate or to gain clarity. She was praying to get more clarity so that Mm. because when we have clarity or whatever we can call intuition or decision making, then Mm. only we can move forward, right? So, like for example, Mm. today I planned a podcast, later what I will do. So when I plan it, it happens in a like sequential manner, or else someone will come something when someone will call, like it's not a planned. So as you told, clarity is very important. Yes, So indeed. many people mind is not in present moment. How to be focused in the present moment? Again, they are telling like it's in like mind always goes in past. This Mm. happened, that happened, and but they are not able to like focus in present, means somehow they are managing to do like their Mm. office work and other things, but how to be like present moment 100%, or they don't Mm. want even that mind to like torture or not make them more You know. energy Mm. drained. Yes, yes, yes. So present moment is the secret. Where is life happening? In this moment. Life is not happening in the past and the future. Even the future will come in the form of present. Hmm? तो मन को सिखाना पड़ेगा ना वर्तमान में रहना. आप कुछ काम कर रहे, ऐसे इफ यू आर डूइंग दिस पॉडकास्ट, योर माइंड इज रनिंग, अरे कल क्या होगा या 1 घंटे बाद क्या करने वाला है. तो यू कैन नॉट बी 100% हियर राइट नाउ. अभी की तो यही ठीक है, आप 1 घंटे बाद कुछ और करेंगे, बट अभी तो यही है ना. कैन वी बी हियर 100%? दिस इज दैट. ट्रेन कैसे करते हैं मन को? कहते हैं योर ब्रेथ इज इन द प्रेजेंट. व्हेन यू फोकस ऑन अ ब्रेथ, माइंड कम्स इन द प्रेजेंट मोमेंट. वर्तमान में मन ठहर जाता है. अगेन यहाँ पर योग साधना का प्रैक्टिस, मेडिटेशन का प्रैक्टिस, धीरे धीरे आप टिकने लगते हो. हम्म. छोटे बच्चे थे, चलना भी नहीं आता था ना, प्रैक्टिस किया था ना उसके लिए. तो वर्तमान में रहने की प्रैक्टिस क्या है? ब्रीदिंग के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू, क्रिया के थ्रू. धीरे धीरे, पहले आप 1 मिनट भी नहीं रह पाते थे, अब 20-20 मिनट रहते हो. 2 घंटे रहने लग गए, पता चला कि अब दिन में 10 घंटे रहते हो, कभी कभी इधर उधर जाता है मन. हमें फोकस्ड है, यू आर डूइंग वर्क विद फोकस. पहले 10 बार डिस्ट्रैक्ट होते थे. अब आपने कमिटमेंट लिया कि ये काम करके उठेंगे, तो वो काम करके ही 100% आप उठते हो विथ फोकस. नॉट जस्ट बैठे हैं जी, 10 बार इधर मन जा रहा है. सो योर ब्रेथ इज द की टू ब्रिंग द माइंड इन द प्रेजेंट मोमेंट. कहते हैं ना, अरे इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, आई विल टेल यू. देयर इज वन, कुछ था, और वहां पर बहुत सारे लोग आ रहे थे, बिहार दिवस वाज देयर, एंड पीपल वर टेलिंग कि इससे क्या क्या फायदा होता है सुदर्शन क्रिया से, व्हाट विल हैपन टू मी, व्हाट आई विल गेन. तो हमने बोला कि सब कुछ होता है क्या इससे? और आपको लग रहा है यार अच्छा बोल रहे, सब कुछ होता है. अभी आपने इतने क्वेश्चंस पूछे मुझसे: हार्ट ब्रेक, फोकस, प्रेजेंट मोमेंट, अट्रैक्शन, फाइंडिंग द जॉय इन द सेल्फ. क्या आंसर है? और ये ट्रूथ है ना. और 10 और चीजें भी आप पूछेंगे ना, आंसर एक ही रहने वाला है. चाहे आप कुछ भी पूछो, आंसर एक ही है. और जब आपको पता है तो आप वो करना. अब आप क्या खोज रहे हो? हम्म. और चाहे कहीं भी आप फंस रहे हो, आंसर वही है. ईश्वर है, डिवाइन है, गुरु है, साधना है. हम्म. कुछ और नहीं है जो बता दिया जाएगा. सत्य तो एक ही है ना. आना तो वैसे ही पड़ेगा ना. मन नहीं कर रहा है, मन तप है ना. मन नहीं कर रहा, हमें भी नहीं, बहुत पहले कहाँ मन करता था, फिर भी हमने किया. इसी को तप कहते हैं. तप उसी को कहते हैं, मन नहीं करता है फिर भी करना है, बिकॉज इट इज गुड फॉर यू इन द लॉन्गर रन. और जो तपस्वी होता है ना, जो तप करता है, वही जीवन में परफेक्शन हासिल करता है. वही सारे इम्प्योरिटीज को बर्न कर देता है. लेकिन जो तप ही नहीं, मन नहीं कर रहा इसलिए नहीं करेंगे, मन नहीं कर, करो, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू. वही लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं. तो आप चेक कर लीजिए, आप वही करते हैं जो आपका मन करता है,
फिर तो भूल जाइए वर्तमान को, फिर फंसेंगे उसी पैटर्न्स में, हार्ट ब्रेक होगा, अट्रैक्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लोनली फील करेंगे। करना पड़ेगा काम, और जीवन में बहुत बड़ा नहीं है, आपको लग रहा है, कभी भी जा सकते हैं हम, टेम्पररी जीवन है ये। हम्म, और बहुत, ये ह्यूमन बर्थ बड़े मुश्किल से मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी के जैसे है। सो डू द स्टफ दैट यू आर हियर फॉर। जो मैटर करता है वो चीजें करे, जो नहीं मैटर करता है वो अपने आप छूटती जाएंगी। ठीक है, ओके। So in starting, like as you told, like breath and everything, how much effort should we put in starting? Like या, how हाउ much मच एफर्ट? efforts we have to put to व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट? like, for example, should how they should learn or how much effort they should put, how much practice. पहले तो इंटेंट इज इम्पोर्टेंट। एफर्ट, द टीचर विल गाइड यू व्हाट एफर्ट यू हैव टू पुट इन। Your intent has to be there, that I have to follow sincerely what my teacher is telling me to do. Intent should not be full of doubt, अरे क्या होगा, अरे क्यों करूँ, या किसी ने बताया तो आपको करना नहीं है। इंटेंट सही रखें कि मुझे बदलाव जीवन में लाना है, मुझे क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज करनी है। कहते हैं ना, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर ब्रेथ। सिंपल। जैसा ब्रेथ का क्वालिटी है, वैसा जीवन का क्वालिटी होता है। ब्रेथ का क्वालिटी बदला, जीवन बदल जाएगा, वाइब्रेशन बदल जाएंगे, स्पेस बदल जाएगा आपका, यही रहते रहते। एनर्जेटिकली यू आर एलिवेटेड। सो इंटेंट ये रखें कि मुझे एफर्ट करना है जो भी मुझे सिखाया जा रहा है। बाकी कितना एफर्ट करना है आपको, टीचर विल गाइड यू एंड यू डू दैट एफर्ट। इवन स्मॉल एफर्ट विल काउंट, और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, है ना। सो इंटेंट इज इम्पोर्टेंट। So thanks for joining and giving your time and guiding the peoples regarding the heartbreak and focus. So final note, what you want to share with our audience before like we end this podcast. Yeah. And I'm so grateful. Thank you for calling me here and asking such relevant questions, which people are unable to ask to the people around them. है ना, तो ये सब क्वेश्चंस बहुत हेल्प करने वाले हैं सबको। और जो भी इसको सुन रहे हैं, दिस इज वन थिंग यू डू योर सेल्फ अ फेवर एंड डू सुदर्शन क्रिया। लर्न सुदर्शन क्रिया। सर्च करिए, अब जहां भी रहते हैं सर्च करिए वहां पर, आर्ट ऑफ लिविंग दैट स्पेस। और अगर नहीं फिर भी पता चलता है, यू कैन आस्क शशांक, यू कैन आस्क मी, मैं आपको सर्च करके शेयर कर सकती हूँ, ऑनलाइन भी होता है। तो प्रैक्टिस करिए, एंड जस्ट नो दैट यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं, आपके हृदय में भगवान बैठे हैं। कृष्ण भगवान बैठे हैं। गीता पढ़िए, ध्यान करिए, एंड डू सर्विस ना। वेक अप एंड रियलाइज दैट यू हैव एवरीथिंग टू शेयर। सब कुछ शेयर करने को है, कोई कमी नहीं है। इस भाव से हर दिन उठे, आज मैं क्या कंट्रीब्यूट करने वाला हूँ। फिर देखिए जीवन जीने का कैसा आनंद आता है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, होप दिस हेल्प्स, या, थैंक यू सो मच।